આ સમયસાર નામનું પરમ અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર છે. એમની શરૂઆત આજથી કરવામાં આવે છે. સમયસારમાં ઉપરના ભાગે ઓમ લખેલો છે. ઓમ એટલે પંચ પરમેષ્ટિ. પંચ પરમેષ્ટિમાં અર્યંત અને સિદ્ધ. અર્યંતને ભાવમોક્ષ છે, સિદ્ધ પરમાત્માને ભાવમોક્ષ અને દ્રવ્ય મોક્ષ છે. આચાર્ય ઉપાધ્યાય સાધુ એ ત્રણેય મોક્ષ માર્ગમાં છે. તો ઓમ કહેતા મોક્ષ માર્ગ અને એનું ફળ મોક્ષ એવા પંચ પરમેષ્ટિને વંદન એ ઓમમાં સમાઈ જાય છે. ઓમનો બીજો અર્થ છે તીર્થંકર ભગવાનની વાણી. તીર્થંકર ભગવાનની વાણી એટલે આખરી તીર્થંકર મહાવીર ભગવાન થયા અને મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર એ સિમંદર ભગવાનની વાણી. મહાવીર ભગવાનની વાણી અને સિમંદર ભગવાનની વાણી. તો મહાવીર ભગવાનની વાણીનો પરંપરાએ યોગ કુંકુંદાચાર્ય દેવને થયો અને કુંકુંદાચાર્ય દેવી સાક્ષાત સિમંદર ભગવાનની વાણી સાંભળી. એવી દિવ્ય ધ્વનિ એને ઓમ કહેવાય છે. કુંકુંદાચાર્ય દેવ સાક્ષાત સિમંદર ભગવાનની વાણી લાવ્યા. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં જઈને ભગવાનની વાણી સાંભળી. એ વાણીને શ્રુત લબ્ધિમાં ઉદાહરણ કરી ભાવમાં સંગ્રહી લીધી, હૃદયમાં સંગ્રહી લીધી. એ ભગવાનની વાણીનો સાર એ આગમોમાં આગમોની રચના કરતા કુંકુંદાચાર્ય દેવે એ આગમોનો સાર આગમમાં ભરી આપ્યો. એવા પંચ પરમાગમ વર્તમાનમાં વિદ્યમાન છે. એમાં સર્વોત્કૃષ્ટ આગમ સમયસાર છે. એ સમયસાર ભગવાનની દિવ્ય ધ્વનિનો સાર છે. પૂજ્ય ગુરુદેવ સિમંદર ભગવાનની વાણી સાંભળીને એ સંસ્કાર સાથે લાવ્યા. તો પૂર્વે ગુરુદેવે તીર્થંકર ભગવાનની વાણી સાંભળી છે અને ભવિષ્યમાં ગુરુદેવ તીર્થંકર થશે ત્યારે એમના શ્રી મુખેથી
દિવ્ય ધ્વનિ છૂટવાની છે. બેનશ્રી પણ પૂર્વે સિમંદર ભગવાન પાસે હતા. સાક્ષાત સિમંદર ભગવાનની વાણી સાંભળી એના સંસ્કાર સાથે લાવ્યા અને બાળ વયમાં પૂર્વ સંસ્કારના જોરે સમ્યક દર્શનને પ્રાપ્ત કર્યું. કુંકુંદાચાર્ય દેવ જે વાણી લાવ્યા અને સમયસારમાં સંગ્રહિત કરી એ જ સિમંદર ભગવાન પાસેથી સંસ્કાર લઈને આવેલા બેનશ્રી એમના હસ્તકમળ દ્વારા પૂજ્ય ગુરુદેવના શાસનમાં પ્રથમ જીનવાણી તરીકે સમયસારની સ્થાપના થઈ. ઓમ ધ્વનિ એમાંથી ગણધરો 12 અંગ 14 પૂર્વની રચના કરે અને એમની પરંપરાના આચાર્યો પણ 12 અંગ 14 પૂર્વના આધારે ઉપદેશ આપે. એવો આ ઓમનો અર્થ છે. હવે કે છે નમ પરમાત્માને. નિશ્ચયથી તો તારો પોતાનો જ્ઞાયક પરમાત્મા છે. એને વંદન કરવું એટલે, એને નમન કરવું એટલે તારો વર્તમાન ઉપયોગ ઉત્પન્ન થતાની સાથે જ્ઞાયક સ્વભાવ તરફ નમી જાય, ઢળી જાય. તો એવા જ્ઞાયકને વંદન કરવું અને સવિકલ્પ દશામાં આવે તો 3 યોગ દ્વારા, મન વચન કાયા દ્વારા અર્યંત અને સિદ્ધ પરમાત્માને વંદન કરવું એ નમ પરમાત્માને એનો અર્થ એ છે. હવે કે છે શ્રીમદ ભગવત કુંકુંદાચાર્ય દેવ પ્રણીત શ્રીમદ કુંકુંદાચાર્ય દેવ. શ્રીમદ એટલે ભાવશ્રુત જ્ઞાન અને દ્રવ્યશ્રુત જ્ઞાનના ધારક છે. ભગવતી સ્વરૂપ છે, વૈરાગવંત છે. મોટા યોગીશ્વર જેવો જેમનો દેખાવ છે એવો બેનશ્રીએ કુંકુંદાચાર્ય દેવને પૂર્વે જોયા હતા. પૂજ્ય ગુરુદેવે પણ જોયા હતા. એક કુંકુંદાચાર્ય દેવના ભાવપૂર્વક દર્શન ગુરુદેવે પૂર્વે કરેલા. બેનશ્રી જાતિસ્મરણ દ્વારા કહે છે કે કુંકુંદાચાર્ય દેવ, હાજી, અચ્છા, તો કુંકુંદાચાર્ય દેવ जब महाविद्य क्षेत्र में पधारे, चारण वृत्ति के माध्यम से
समोसरण में प्रवेश करके सिमंदर भगवान की मुख मुद्रा के सामने खड़गासन में वंदन करते हुए वैरागवंत मुद्रा के द्वारा भगवान का वंदन किया। कुंकुंदाचार्य देव का दिखाव महायोगीश्वर जैसा था, तो ऐसा फाट फाट जो वैराग कुंकुंदाचार्य देव को है, उसके लिए भगवत स्वरूप शब्द प्रयोग किया है। तो श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव, कुंकुंदाचार्य देव आचार्य था। वो आचार्य थे, मुनि संघ को दौड़ने वाले, माताजी ऐसा कहती थी कि कुंकुंदाचार्य देव तीर्थंकर भगवान की सभा में पधारे तब उसकी मुद्रा पर फाट फाट वैराग्य था। उसका वैराग देखकर दूसरे जीवों भी आश्चर्यचकित हो जाए। उसका दिखाव कोई बड़े योगीश्वर जैसा था। तो ऐसा जो कुंकुंदाचार्य देव का वैराग है, वो वैराग के लिए भगवत शब्द प्रयोग किया है। श्रीमद् भगवत, उसका अर्थ है, श्रीमद् का अर्थ है ज्ञान, भगवत का अर्थ है वैराग। ज्ञान और वैराग, तो जो ज्ञानवंत है, जो वैरागवंत है, ऐसे कुंकुंदाचार्य देव आचार्य थे। मुनियों में सर्वोत्कृष्ट पद आचार्य पद है। आचार्य को 36 गुण की प्रकटता होती है। 5 महाव्रत, 5 संहिता, 5 इंद्रिय और 6 आवश्यक, 21 हुआ। नग्न दशा, खड़ा खड़ा आहार, एक बार आहार, केश लोचन, अदन धोवन, भूमि शयन, तो जो मुनि है नग्न दशा के साथ, इससे 28 मूल गुण होते हैं। अगर 36 लो तो उसमें 5 आचार आदि सब बातें आती है, तो 36 गुणों की प्रकटता उसको होती है। 5 आचार और 3 गुप्ती उसमें ऐड कर दो तो 36 गुण के धारक है।
आचार्य मुनियों को शिक्षा दीक्षा देते हैं। दीक्षा भी दे, अगर दोष रहता है तो, दोष होता है तो प्रायश्चित भी दे। कुनकुंदाचार्य देव रुद्धिधारी देव है। जो ज्ञानवंत है, जो वैरागवंत है, जो आचार्य है, जो रुद्धिकों के धारक है और जिसने साक्षात भगवान की वाणी सुनी है, ऐसे कुनकुंदाचार्य देव प्रणीत यानी उसके द्वारा रचित श्री समयसार श्री के ज्ञान रूपी लक्ष्मी, आ समयसार ज्ञान रूपी लक्ष्मी है। समयसार वर्तमान काल का सर्वोत्कृष्ट आगम है, अजोड़ शास्त्र है, ग्रंथों का राजा है, साधकों का साथी है, समयसार एक शब्द में पूरा ग्रंथ समा हुआ है। आचार्य भगवंत श्रुत लब्धि के धारक होने के कारण एक शब्द में पूरे समयसार शास्त्र का भाव संक्षिप्त में समा सकते हैं। आचार्य भगवंत श्रुत लब्धि के धारक होने के कारण ये समयसार एक शब्द में से 9 अधिकार 415 गाथा खोल सकते हैं। समयसार का अर्थ आगे होगा, जब श्लोक आएगा तब करेंगे। अब लिखा है पूर्व रंग। समयसार के पहले उसकी भूमिका बताना है तो उसको पूर्व रंग कहते हैं। उसके बाद लिखा है श्रीमद् अमृतचंद्र सूरी कृत आत्मख्याति कुनकुंदाचार्य देव के बाद 1000 साल बाद अमृतचंद्र आचार्य हुए। वो भी आचार्य थे, मुनि संघ को दौड़ने वाले, मुनियों को शिक्षा दीक्षा देने वाले, 36 गुण के धारक, उसका जैसा नाम है ऐसी उसकी वाणी है। अमृत, उसकी वाणी भी अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय सुख से भरी हुई अमृत है। उसकी वाणी दूसरे जीवों को जीवन दे सकती है। अमृतचंद्राचार्य देव ने
कुंकुंदाचार्य देव के 3 शास्त्र समयसार, प्रवचनसार, पंचास्तिकाय 3 शास्त्र की टीका रची है। अमृतचंद्राचार्य देव के बारे में पूज्य गुरुदेव कहते थे कि कुंकुंदाचार्य देव के हृदय में बैठकर उसके हृदय में जो भाव था वही भाव अमृतचंद्राचार्य देव ने टीका में खोलकर भव्य जीवों के लिए रखा है। अमृतचंद्राचार्य देव, उसके बारे में गुरुदेव कहते थे कि उसकी टीका न भूतो न भविष्यति। ऐसी टीका भूतकाल में हुई नहीं है, भविष्य में नहीं होगी। कुछ विद्वानों अमृतचंद्राचार्य देव की टीका निकालकर अज्ञान दशा में खड़ा रहकर टीका की रचना करके शास्त्र में रखते हैं। ये चेष्टा योग्य नहीं है। जब 6ठे 7वें गुणस्थान पर झूलने वाले मुनिराज 6ठे 7वें गुणस्थान पर झूलने वाले आचार्य भगवंत अमृतचंद्राचार्य देव ने जब टीका आत्मा के अनुभव पूर्वक की हो और उसकी टीका निकालकर कोई विद्वान की टीका रखना, ये जिनवाणी के प्रति द्रोह है, अन्याय है। ऐसे अमृतचंद्राचार्य देव की जो टीका है वो आत्मख्याति नाम की टीका के रूप में प्रचलित है। अब अमृतचंद्राचार्य देव तीन श्लोक के द्वारा मांगलिक करके शुरुआत करेंगे। प्रथम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर चिदे। अमृतचंद्राचार्य देवी कुंकुंदाचार्य देव की मूल गाथा उसकी टीका की रचना की है और जहाँ जहाँ उस गाथा के बारे में ज्यादा कहने का भाव आया वहाँ वहाँ श्लोक की रचना की है। तो अमृतचंद्राचार्य देव ने दो कार्य किया, टीका की
और ज़्यादा कहने की जरूरत लगी वहाँ श्लोक की भी रचना की। ऐसी जो मूल गाथा और आत्मख्याति नाम की टीका का गुजराती अनुवाद हमें मालूम है कि पूज्य गुरुदेव के निमित्त से बेन श्री को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। बेन श्री से बड़े भाई पंडित हिम्मत भाई बेन श्री से 6 साल बड़े थे। गुरुदेव की आज्ञा से बेन श्री के आशीर्वाद से भव भीरू होकर उपयोगात्मकपणे पंडित हिम्मत भाई ने इस समय सा का प्रथम अनुवाद किया गुजराती में। पंडित हिम्मत भाई के लिए गुरुदेव ने कहा है कि निकट मोक्षगामी है। एक बार बेन श्री को किसी ने कहा कि बेन ने पा लिया, भाई रह गया। तो बेन श्री ने बोला ऐसा नहीं है, भाई ने भी पाया है। तो ये पंडित हिम्मत भाई ने गुरुदेव की आज्ञा से, माता जी के आशीर्वाद से बहुवीरू होकर समय सार का भाषांतर के लिए व्यवसाय में से काफी निवृत्ति लेकर ऐसा भाषांतर किया कि करीबन 80 साल शास्त्र के भाषांतर को हुआ। आज तक उसके भाषांतर में से किसी ने कोई गलती निकाली नहीं और कभी किसी ने उसके भाषांतर को चैलेंज नहीं किया है। अगर गुजराती भाषांतर नहीं होता तो हमें भी ये शास्त्र पढ़ना, उसका भाव निकालना, उसको समझना काफी मुश्किल हो सकता था। तो गुजराती अनुवाद उसने किया है। अब हाँ, ये आवશે આગળ। હવે કે છે कि जो आ प्रमाणे यानी इस प्रकार मंगल पूर्वक प्रतिज्ञा करके श्री कुंकुंद आचार्य कृत गाथाबद्ध समय प्रारब्ध ग्रंथ ही
श्री अमृतचंद्राचार्य कृत आत्मख्याति नाम की संस्कृत टीका है, उसको देश भाषा में वचनी का रूप लिखते हैं। प्रथम संस्कृत टीकाकार श्री अमृतचंद्राचार्य ग्रंथ की आदि में प्रथम श्लोक के द्वारा मंगल के अर्थ यानी मांगलिक करने का हेतु से इष्ट देव को नमस्कार करते हैं। अब जो ये प्रथम श्लोक है, नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते, उसका अर्थ है એ અમૃતચંદ્રાચાર્ય એટલે જે આમનો ભાવાર્થ જેમણે લખ્યો છે ને જયચંદજીએ, એમણે આ લખ્યું છે પદ, એમને પણ વંદન કર્યું છે। હા, હવે કે છે લાઉડ રાખો। ઓકે, હવે અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવ રચિત પ્રથમ શ્લોક, એનો શ્લોકાર્થ। पहलो शब्द है ब्रैकेट में, प्रथम शब्द जो दो है ब्रैकेट में, नमः समय साराय। समय अर्थात जीव नाम का पदार्थ। तो समय का प्रथम अर्थ किया जीव। हमने भूमिका के स्वाध्याय में बताया था कि समय आचार्य भगवान समय का एक अर्थ जीव करेंगे, तब समय सार का अर्थ जीव में सारभूत करेंगे। तो देखो, समय अर्थात जीव नाम का पदार्थ, उसमें सार, जीव में सारभूत क्या है? तो कि जीव में सारभूत शुद्धात्मा है, लेकिन शुद्धात्मा कैसा है? तो कि जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित, ऐसे शुद्धात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। देखो, शुरुआत कहाँ से की? अमृतचंद्राचार्य देव ने समय सार शब्द में से समय शब्द लिया। समय का अर्थ किया जीव नाम का पदार्थ। समय सार का अर्थ किया जीव में सारभूत। जीव में सारभूत बताया शुद्धात्मा। क्योंकि जीव के पास
जीव का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव भी है, अनंत गुण भी है, वर्तमान वर्ती पर्याय है। तो जीव का स्वभाव, उसके गुण भेद और उसके पर्याय के भेद, उसमें सारभूत क्या है? तो कि उसमें सारभूत जीव का स्वभाव यानी शुद्धात्मा यानी ज्ञायक, ऐसा जो शुद्धात्मा है उसको मेरा नमस्कार हो, उसको मेरा वंदन हो। ये बात शब्द के माध्यम से बताई। उसको अनुभूति के आधार पर बात करो तो मेरा उपयोग उत्पन्न होने के साथ ज्ञायक स्वभाव में जुड़ जाए, मेरा उपयोग उत्पन्न होने के साथ ज्ञायक स्वभाव में ढल जाए, मेरा उपयोग उत्पन्न होने के साथ विनायक को वंदन करे, विनायक को नमस्कार करे, मेरा उपयोग उत्पन्न होने के साथ विनायक को ग्रहण करे, उसको यानी विनायक को मेरा ऐसा नमस्कार हो जिस विनायक को मैं वंदन करता हूँ वो विनायक कैसा है? तो हमने 14वीं गाथा में से के आधार पर बताया था कि ज्ञायक द्रव्य कर्म को स्पर्शा नहीं है, ज्ञायक द्रव्य कर्म से बंधा हुआ नहीं है।